हेलो एवरीवन। आज हम हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। वी गोइंग टू लर्न हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ओके। देखिए, जो डेकिन रीअरेंजमेंट था वो भी जस्ट लाइक हाइड्रोपेरोक्साइड ही था, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट there is the hydroperoxide rearrangement, or in presence of alkaline catalyst in alkaline condition के अंदर अगर रिएक्शन होती है तो वो डेकिन रीअरेंजमेंट है, और अगर एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है। इन बोथ rearrangement H2O2 is required. So in presence of acid there is hydroperoxide rearrangement, and in presence of alkaline there is rearrangement. So we talking about hydroperoxide rearrangement. Rearrangement of hydroperoxide in presence of acid catalyst. The catalysts are H2O2, HClO4, perchloric acid, LCl3, FeCl3, BF3. These are Lewis acid. Okay, these are Lewis acid. These are strong acid H2SO4, HClO4. The product of a rearrangement, ketone and aldehyde, ketone carbonyl compound and alcohol or phenol. Depends on alkyl group. Which is alkyl group? Alkyl group is methyl, ethyl, propyl. Then alcohol is formed, and this if R group is benzene ring, then phenol is formed. Okay, but the must condition is H2O2 in presence of HCl acid. Okay, in Deccan rearrangement, again I said, in Deccan rearrangement there is presence of H2O2 with in alkaline condition, but in this condition acidic condition. Okay. इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो फॉर्मेशन होता है इन सीटू होता है। इन सीटू मतलब कि ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान ही हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन फाइनली इट रीअरेंज टू कीटोन, carbonyl compound and alcohol and phenol. Okay, so first of all, any alcohol react with H2O2 in presence of HClO4, formed hydroperoxide. This is hydroperoxide during the reaction. So in situ formation, remember, in situ formation. Okay, and this finally this rearrange to carbonyl compound and alcohol and phenol. Okay, so what is the mechanism of this reaction? Okay, mechanism. देखिए क्या होता है। Firstly, this is alcohol, and this is H2O2. React with alcohol and form hydroperoxide. This is formed in situ in the reaction, during the reaction. Okay, OOH. Clear? This is hydroperoxide. Then in acidic condition, H positive attack at this oxygen. So RCr OH2 पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि OH ने लोन पे डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को। ओके, देन this OH2 positive removed from this place. This is electron deficient oxygen because these bond electron, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये OH2 अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन OH ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन होगा यहाँ से यहाँ पर, यानी कि 1 to एल्किल ग्रुप माइग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन अगेन लाइक बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, so this is electron deficient like Deccan rearrangement. There is also electron deficient oxygen and 1 to migration of alkyl and phenyl group. So this is 1 to migration of alkyl and phenyl group. Then RCrOR minus H2O. Clear? O पर क्या जाएगा? Positive charge. Then H2O take it this carbon because this is electrophilic center and this is nucleophile. So RCrOH
and positive charge coming to the oxygen. Or clear? Okay. Then minus H positive. What happens? RCr OH OR. ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया. फर्दर in acid attack at this oxygen. This is positive OH, this is break, and this is going to this side. Minus H positive, RC double bond O, R plus ROH. So in this way alcohol and ketones form. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इनिशियली. वापस एक बार देखते हैं इसके मैकेनिज्म को. फर्स्टली अल्कोहल react with hydrogen peroxide H2O to form peroxide. In situ reaction, ये ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एसिड की प्रेजेंस में होती है. H पॉजिटिव अटैक करता है इस OH के ऊपर और H2 पॉजिटिव बनेगा. तो ये OH आप जानते हो ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कभी बियर नहीं कर सकता. डज नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो इट्स रिमूव एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल minus H2O. This oxygen is become electron deficient, then this R group migrate to 1,2 alkyl migration, migrate to electron deficient oxygen, and oxygen carbon electrophilic center generated carbon. This is nucleophile OH2O as behave as nucleophile and take at electrophilic carbon and formed as product and form and convert into this product. Finally, oxygen bear positive charge, which is not possible. Then H positive is removed from this OH2 group. Then finally this group is formed. Then at H positive attack at this is OR group. Then oxygen positive charge. Then this bond is break. And finally ketone and alcohol is formed. तो इस तरह से कीटोन और अल्कोहल का निर्माण होता है. क्लियर? तो ये एक अल्कोहल से, यानी इस रिएक्शन के अंदर देखिए क्या हुआ. एक अल्कोहल था, वो कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल वो कन्वर्ट हो गया कीटोन के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर और एक अल्कोहल के अंदर. यानी कि एक अल्कोहल से कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड बनना हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट कहलाता है. क्लियर? तो एक तरीका तो ये हो गया हाइड्रोपेरोक्साइड बनने का और उसका रीअरेंजमेंट होने का. इस तरह से रीअरेंजमेंट हो गया. एक मेथड और है हाइड्रोपेरोक्साइड बनने का, कि हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बन सकता है. दूसरा एक मेथड और है, यदि आपको एल्कीन चाहिए तो एल्कीन से हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनेगा, देखिए वो देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर. देखिए एल्कीन से हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बनेगा, ये स्ट्रक्चर दे रखी है हमें. अनदर वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड फ्रॉम एल्कीन. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एल्कीन पर H पॉजिटिव अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ. मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, क्योंकि मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग अटैक वहां पर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है. यानी H पॉजिटिव आयन अटैक एट दिस प्लेस वेयर मोर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड. ओके, देन अटैक H2O2 इस पर अटैक करेगा. तो H2O2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसके ऊपर अटैक करेगा. ये क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है. क्लियर? CH3 OH इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. फाइनली ये बाहर हो जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा. क्या बन जाएगा, RCr CH3 OOH. तो इस तरह से हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा. क्लियर? फाइनली फिर तो सेम मैकेनिज्म है. H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा. CH3 OH2 पॉजिटिव, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा. R ग्रुप माइग्रेट टू दिस प्लेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, RCOR CH3, ये पॉजिटिव चार्ज. देन H2O अटैक करेगा, तो
CH3 और OH2 पॉजिटिव, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा जो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा RCCH3 ORH पॉजिटिव OH, फाइनली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ROH। तो इस तरह से एक वे है हाइड्रोपेरोक्साइड बनने का कि एल्किन से हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बन सकता है। तो सिंपली एल्किन पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आपको H प्लस का एडिशन कराना है, देन उस पर आपको हाइड्रोपेरोक्साइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है, फाइनली फिर सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स है जो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मैंने बताई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। तो आप अल्टीमेटली हुआ क्या है, एक एल्कोहल या एक एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई, या एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई, एल्डिहाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल में। माइग्रेट एप्टीट्यूड की माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर जो माइग्रेशन हो रहा था वो किसका होगा, तो वही जो आप बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड माइग्रेट एप्टीट्यूड था वही सेम माइग्रेट एप्टीट्यूड यहाँ पर है। तो एच का सबसे ज्यादा, फिर टर्सरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल, मेथिल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई है फेनिल रिंग के ऊपर तो उसका माइग्रेट एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम फेनिल का, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहीं पर भी है तो उसका सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप जानते हो ऑक्सीजन, ये मैंने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के अंदर भी बताया है कि कैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम करता है, तो ये आप वहां से देख सकते हो बेयर विलीगर पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। जैसा कि आपको पता है कि O पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर वो जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज में कमी होगी, डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए टर्सरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं इजीली माइग्रेट होते हैं कंपैरेटिवली मेथिल के, प्राइमरी एल्कोहल के। सेम फेनिल रिंग के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो माइग्रेट एप्टीट्यूड ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। क्लियर। चलिए कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके हाइड्रोपेरोक्साइड के। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल OH2 पॉजिटिव, क्लियर, H पॉजिटिव अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ से बाहर, तो यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट होगा। वाइनिल ग्रुप की जो माइग्रेशन होता है वो एल्किल मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि तो वाइनिल ग्रुप जो आता है सिमिलर फेनिल ग्रुप, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज कर देगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन को। क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन जो होगी उसको रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रेजोनेट करेगा उसके लोन पेयर के साथ या पॉजिटिव के साथ तो इजीली इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो वाइनिल ग्रुप दिस इज वाइनिल ग्रुप स्टेबलाइज the electron deficient oxygen by resonance, इसलिए माइग्रेट एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होगा। क्लियर। देखिए क्या होगा, क्लियर, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, क्लियर, दिस इज ये CH हो गया, CH और पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये माइग्रेट होगा तो ये जो CH है ये CH होगा यहाँ पर, ठीक है, ये CH ये हो गया, क्लियर। देन H2O अटैक करेगा इसके ऊपर, फाइनली यहाँ पर आएगा H2O, तो क्या होगा CH OH और ये ऑक्सीजन, क्लियर। फाइनली OH कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर, क्या हो जाएगा ओ CH OH, जस्ट ए मिनट, CH OH ऑक्सीजन,
इस पर H जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? ओके, तो ये यहाँ से रिमूव होगा और ये फाइनली यहाँ रिमूव होगा। क्या बनेगा? ये तो हो गया CHO डबल बॉन्ड, दिस इज OH। मैं वापस बना रहा हूँ इसको, यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज CHO डबल बॉन्ड OH। क्लियर? एंड दिस इज कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। जैसा कि आप जानते हो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, ये आगे जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकल के यहाँ लग जाएगा। टोटो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CHO और ये डबल बॉन्ड, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये मैकेनिज्म करना है। तो वाइनिल ग्रुप का माइग्रेशन ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो माइग्रेट एपिटूट वाइनिल का ज़्यादा होगा, तो सिंपली H ने इस पे अटैक किया। क्लियर? ये बना OH2 पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से माइग्रेशन इस पे होगा, तो यहाँ CH पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड CH पॉजिटिव। क्लियर? H2 अटैक करेगा इसके ऊपर, ये सिंपली ये OH आ जाएगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, फाइनली ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये बनेगा स्ट्रक्चर जो टोटोमराइजेशन के द्वारा फाइनली इस पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका माइग्रेशन कर सकते हैं और सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक और। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, देखिए क्या है। क्वेश्चन है CH3OH। क्लियर? कंडीशन दे रखी है आपको H2O2 HClO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। आप सबको पता है हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से CH3OOH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, CH3OOH2 पॉजिटिव। क्लियर? अब फर्दर क्या होगा? OH2 पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन जनरेट होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगी, क्या होगा? ये तो CH3 है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और हाँ, यहाँ आ जाएगा, जस्ट ए मिनट होल्ड, ओ जुड़ जाएगा यहाँ से। क्लियर? और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा। हम OH ये जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ी देर बाद लगाएंगे, इनमें वापस बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को, देखिए। क्लियर? ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, ये CH3 हो गया और ये जुड़ गया। क्लियर? और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन H2 अटैक ऑफ H2O at this electrophilic carbon. Then what happened? CH3OH2 positive. Clear? O and H. Then minus H positive, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन CH3, ये किस में कन्वर्ट होगा? OH में। क्लियर? H पॉजिटिव का अटैक कहाँ होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर, CH3OH OH, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एज यू नो ये पॉजिटिव नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ से ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। क्या बन जाएगा? ये CH2OH हो गया है, तो यानी कि यहाँ OH और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली। देखिए वापस एक बार, ये OH H2O2 के द्वारा हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ OH2 पॉजिटिव,
दिस इज माइग्रेटेड टू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H2O का टेक होगा इसके ऊपर, तो ये OH में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव यहाँ से जैसे बाहर निकलेगा तो ये H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, ये OH पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए, तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा और ये यहाँ से शिफ्टिंग होगी, माइनस H पॉजिटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है और इस तरह से आपको हाइड्रोपेरोक्साइड रिएरेंजमेंट करने होते हैं। तो क्वेश्चंस एग्रीकॉप किताब में वगैरह आपको बुक्स में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स में, इनमें आप वहाँ से सोल्व करिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट